Hello students, once again welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and this is the second lecture of MCQs of linear programming. Linear programming के last lecture में हमने 10 MCQs solve किए हैं. Now in this lecture we will solve again 10 MCQs, 10 important MCQs of linear programming. And उसके पहले lecture में हमने पूरा synopsis देखा था of topic linear programming for MST CET. So students, in this lecture we will solve the MCQs from 11 to 20. 11 से 20 तक MCQs solve करेंगे. All the MCQs are very important. सभी टाइप के MCQs मैं यहाँ पे आपको solve करके दे रहा हूँ. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So without wasting time, we will solve the MCQ number 11 of linear programming for MST CET. So read the question carefully. The extreme values of the function f of xy equal to x minus y over the convex polygon defined by these inequalities x plus y greater than equal to 1, minus x plus 2y less than or equal to 1, x is less than or equal to 1, x and y greater than equal to 0. So first we will write all these inequalities. इनइक्वालिटीज़ को हम राइट डाउन करते हैं और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं, कॉमन रीजन फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन द वर्टाइसेस ऑफ कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन. सो माय फर्स्ट कंस्टेंट इज x प्लस वाई greater than or equal to 1. Second constant is minus x plus 2y minus x plus 2y less than or equal to 1. Third constant is x is less than or equal to 1. And the last constants, as usual, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. This will represent first quadrant. Now we have to draw these three lines. ये तीन लाइन हमें ड्रॉ करने की है. तो इस x प्लस वाई इक्वल टू 1 के पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस. सो इफ़ वी पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, इफ़ वी पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, these are the 2 points from which this line is passing through. Again we will put y equal to 0, so x equal to minus 1, and if we put x equal to 0, y will be equal to 1 by 2. So on the coordinate axis we have to plot these 4 points. So these are the coordinate axes, x axis and y axis. This is x axis, this is y axis. So I have to plot these 2 points, 1 0 and 0 1. So points का distance को ज़्यादा नहीं है तो हम दूर दूर भी कंसिडर कर सकते हैं. This is the point 1 comma 0 and this is the point 0 comma 1. And the line passing through these 2 points, has equation x plus y equal to 1. Now we will find the solution set of this line x plus y equal to 1. For this we will check the point origin. Origin इसमें substitute करते हैं. So for origin x equal to 0, y equal to 0 substitute करेंगे. So 0 plus 0, 0 is greater than 1, 0 is greater than 1 is false. Therefore solution set of this region is not the origin side, that is H1 region नहीं होगा. तो इसका feasible region होगा non origin side, that is the H2 region. Are you getting or not? Origin is not satisfying. 0 plus 0, 0 is greater than 1 is false. Therefore non origin side will be the solution set of this inequality. अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं. -1, 0, -1 0, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करने का है. सो एट द सेम डिस्टेंस दिस इज द पॉइंट -1 0 एंड 0 1 by 2. सो 0 1 by 2 इज दिस मिड पॉइंट 0 1 by 2. 0 1 by 2 is this point, and line passing through these 2 points has equation minus x plus 2y equal to 1. अब इस लाइन का फिजिबल रीजन, ओरिजिन जिस साइड में ओरिजिन है, ओरिजिन या नॉन ओरिजिन है, ये हमें फाइंड आउट करने का है. सो अगेन पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. फॉर ओरिजिन 0 plus 0, 0 is less than 1. This is true. Therefore its feasible region is
ओरिजिन साइड, इसका फिजिबल रीजन कहाँ पे होगा? ओरिजिन साइड। ओके, नाउ माय थर्ड इक्वेशन, inequalities x is less than or equal to 1, so we have to draw the line x equal to 1 which is parallel to y axis. So y axis को parallel line find out draw करने की है, so that will surely cut the x axis at 1, 0. So this is my line x equal to 1 parallel to y axis, and it is here x is less than or equal to 1, x is less than or equal to 1. It means its solution set is on the left hand side of this line x equal to 1 along with the points on the x equal to 1. So now we have to find the common region, feasible region हमें find out करने का है. So इसका feasible region क्या होगा? See here, this portion and this portion. तो थोड़ा इमेजिन कीजिए, देखिए कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है. दिस रीजन इज़ नॉट कॉमन क्योंकि ए इस इक्वेलिटी का रीजन नहीं है, ए भी रीजन नहीं है क्योंकि इस इनइक्वालिटी का रीजन नहीं है. सो दिस इज़ द कॉमन रीजन. कॉमन रीजन ये है. अगर आप पूरे शेडेड पोर्शन ड्रॉ करते हैं तो आपको ये रीजन कॉमन मिलेगा. ओके, so this is the feasible region. Now we have to find the vertices of this feasible region, क्योंकि इन्हीं vertices पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा f of x y इक्वल टू x माइनस वाई, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी. सो वन वर्टेक्स इज ऑलरेडी हियर 1, 0. इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 होगा. नाउ वी विल पुट x इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन. So -1 to y equal to 2, to y equal to 2, so y will be equal to 1. So this is the point 1, 1. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर दैट वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशंस बाय सॉल्विंग x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड -x टू वाई इक्वल टू 1. इन दोनों पॉइंट्स को हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस वी विल गेट दिस पॉइंट एज 1/3, 2/3. सो इफ 1/3 प्लस 2/3, 3/3 is 1. Here 2 into 2/3, 4/3 minus 1/3, 3/3 is 1. So this is the these are the coordinates of this point. So these are the vertices of feasible region. Now let these points are A, B and C. So I have these vertices of feasible region 1, 0. Vertex B is 1, 1. And vertex C is 1/3, 2/3. ओके, अब इन पॉइंट्स पे हमें जो f of x y ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है x माइनस वाई, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. सो एट 1, 0 वैल्यू ऑफ f of x y इज 1 minus 0. पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0. सो 1 minus 0 is 1. Now for at point B, 1 minus 1 is 0, and at point C, 1/3 minus 2/3 is minus 1/3. तो हमें पूछी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है एंड विच वैल्यू इज मिनिमम. सो क्लियरली 1 इज द मैक्सिमम, 1 is maximum and minus 1/3 is minimum. Okay, so the maximum value of this f of x y, x minus y on this feasible region of this system of constants is 1 and minimum value is minus 1/3. So 1 and minus 1/3 is correct answer to this first question, which is in the first option E. So this is the question number first of linear programming for MSTC. So without wasting time, now we will solve the next MCQ number 2. MCQ number, this was 11. We are solving 11 to 20. So this was 11. Now we will solve the next MCQ number 12. Here are the MCQs from 11 to 20. तो ये पहला 11 था. This was 11. Now the MCQ number 12. 12 नंबर का MCQ देखिए, उसको हम सॉल्व करेंगे. So here in this MCQ we have to find the common region represented by these inequalities. inequalities से बनने वाला common region किस टाइप का है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड अनबाउंडेड नहीं है, सिंगल पॉइंट दिया है.
तो फर्स्ट I will write the inequalities of this system of constants. तो इन constants की first constant है 2x plus y less than or equal to 4, 2x plus y less than or equal to 4. Second constant is x minus 2y greater than or equal to 2, x minus y greater than or equal to 2, and as usual this is x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Again we have to find the points on the x-axis and y-axis for these lines. So put y equal to 0, x equal to 2, put x equal to 0, y equal to 4. ये दो पॉइंट्स हमें मिले हैं from this line to x plus y equal to 4. For this line put y equal to 0, x equal to 2, put x equal to 0, y equal to 1. So we have these 2 points for this line, and this represent first quadrant. This represent first quadrant. X is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. So we will draw these lines on the coordinate axis. So again this is x-axis, y-axis, this is x-axis, y-axis, 2 0 0 4. So 2 0 0 4, 2 0 2 0. डिस्टेंस आपको सेम लेने का है. अगर ये डिस्टेंस 2 है तो 0 4 इससे डबल होगा. 2 plus 2 4 ऊपर ले लेंगे. यहाँ पे सेम डिस्टेंस डबल इसके. सो दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 0 4 एंड वी विल ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स. We will draw the line passing through these 2 points, and this line has equation. इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x plus y equal to 4. अब इसका फिजिबल रीजन क्या होगा? आइदर ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड. सो वी विल चेक फॉर ओरिजिन. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 0 and y equal to 0, 0 plus 0 is 0, 0 is less than 4 is true. Therefore its feasible region is origin side. Okay. Now this point 2 comma 0 is common for both the lines. 0 comma minus 1, 0 comma minus 1, 0 comma minus 1 is half of this. So this is the point 0 comma minus 1. And the line is passing through these 2 points. And now this line is x minus 2y equal to 2. Okay. अब इसका फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे. तो इसके इस साइड में ओरिजिन है, इस साइड में ओरिजिन नहीं है. तो ओरिजिन वाला H1 रीजन इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं, ये हम चेक करेंगे. सो बाय पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर दैन 2, 0 is greater than 2. This is false. This is false. 0 minus 0, 0, 0 is greater than 2 is false. तो इसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड नहीं है, नॉन ओरिजिन साइड है. तो देखिए अब इनका कॉमन रीजन कैसा है. ऑप्शंस देखिए, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, किस टाइप का है. सो आई विल ड्रॉ द लाइन्स. आपको अच्छी तरह से ध्यान में आएगा कि इसका फिजिबल रीजन देखिए. On this side this is the common region, यानी solution set of this line, और इसका feasible region solution set of this constraint is this portion. Okay, common region आ रहा है, ये common region है, this is the common region, but we have to find the common region in फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं, देयर इज़ नो कॉमन रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 हियर y इज इक्वल टू 0. तो ये पॉइंट ही इनका कॉमन है. दिस पॉइंट इज कॉमन. कॉमन रीजन नहीं है लेकिन पॉइंट कॉमन है. दिस पॉइंट इज ऑन द बोथ द लाइन्स. कॉमन रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉमन रीजन नहीं. कॉमन रीजन यहाँ पे है. इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका कॉमन रीजन आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा. सो दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस कॉमन रीजन तो नहीं है, सिंगल पॉइंट है. सिंगल पॉइंट से सिंगल पॉइंट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज इन द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है. सो होप आपको समझ में आया होगा. दिस रीजन कॉमन रीजन यहाँ पे है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉमन रीजन नहीं है. सो सिंगल पॉइंट इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर
12, so this was 12. Now see the 13 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ LPP फॉर MHTC. क्वेश्चन नंबर 13 फॉर MHTC. सो रीड द क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए. आप भी ट्राई कर सकते हैं. मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने की है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए. सो 13 इन इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दिए हैं. हैव सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव x एंड y, नो सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव x एंड y, solution for all x and solution for all y. Okay, so see the 13. So here my constants are 3x minus y greater than or equal to 3, 3x minus y greater than or equal to 3, and the next constant is 4x minus y greater than 4, 4x minus y greater than, only two constants are here. So इनके points find out करते हैं on x axis and y axis. So for x axis and y axis, for x axis y0 x कितना मिलेगा 1, एंड फॉर y axis x0 सब्सटीट्यूट करेंगे y कितना मिलेगा -3. तो ये दो पॉइंट्स मिल गए हैं. नाउ फॉर दिस लाइन अगेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, एंड फॉर y axis x इक्वल टू 0 y कितना मिलेगा -4. सो ये 4 पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करने के हैं. सो सी हेयर 1,0 0 -4 तक जाने का है नीचे. तो पहले पॉइंट्स को देख लीजिए, देन यू ड्रॉ द ग्राफ. ओके, सो 1 0 डिस्टेंस हम ले लेंगे यहाँ पे 1, ये 1 डिस्टेंस है 1 0 0, -3. सो 1 2 3. ओके, so this is -3 and this is +1. so line is passing through these 2 points, line is passing through these 2 points, and this line has equation, this line has equation. इस line का equation क्या होगा 3x minus y equal to 3. ओके, ना इसका फिजिबल रीजन देखिए, ग्रेटर देन का साइन है. ओरिजिन के लिए चेक करेंगे. पुट ये ओरिजिन साइड H1 रीजन, H2 रीजन, कौन सा रीजन है वो हमें देखने का है. सो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 0, 0 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स. 0 इज ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स. सो इट्स फिजिबल रीजन इज ऑन नॉन ओरिजिन साइड. तो इसका फिजिबल रीजन नॉन ओरिजिन साइड पे आएगा, ये पोर्शन मिलेगा. Now 1, 0 is the same point, 0, -4, 0, -4. So this is -4, and the same point 1, 0 is here. So the line will pass through like this. The line will pass through these 2 points, 1, 0 and 0, -4. और इस लाइन का इक्वेशन है 4x. इस लाइन का इक्वेशन है 4x minus y इक्वल टू 4. नाउ इसका फिजिबल रीजन भी चेक करेंगे. सो अगेन फॉर सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 माइनस 0, 0 इज ग्रेटर देन 4 इज फॉल्स. तो इसका भी फिजिबल रीजन नॉन ओरिजिन साइड ही होगा, नॉन ओरिजिन साइड होगा. तो फिजिबल रीजन कहाँ पे आ रहा है, वेयर इज द फिजिबल रीजन. दिस पोर्शन इज कॉमन to both the constants. See here, this portion, this region is common to both the constants. Okay, अब options थोड़े अलग हैं. फर्स्ट ऑप्शन है this inequations have solution for positive x and y, no solution for positive x and y, solution for all x, solution for all y. See here, इन दोनों का कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. इन दोनों का कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ बोथ द इनइक्वालिटीज. तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव. तो दोनों x और पॉजिटिव के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा. इन दोनों ऑल द पॉइंट्स इन द फिजिबल रीजन आर द सॉल्यूशंस. सभी पॉइंट्स फिजिबल रीजन के सॉल्यूशन होते हैं. सो हियर इज प्लस, इट मीन्स दिस इन इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस फॉर पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y.
No doubt, these inequations have solution for positive x and negative y. फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y, ए भी आंसर है, लेकिन वह उस टाइप का आंसर हमें ऑप्शन में नहीं दिया है। वहाँ पे दिया है नो सोल्यूशन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड वाई, बट इट हैज सोल्यूशन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई. So both are correct, but in option we have given positive x and positive y. So this option first is correct to this question number 13 of LPP. Hope you समझ में आया होगा. Now we will solve the next MCQ number 14 of LPP for MST CET. So next question देखिए, question number 14 of LPP. So 14 नंबर का क्वेश्चन है मेरा. 14 रीड द क्वेश्चन नंबर 14. तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू के बारे में दिया है. मैक्सिमाइज 1.5x प्लस वाई सब्जेक्ट टू दिस कंस्टेंट. तो पहले हम कंस्टेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे. फर्स्ट कंस्टेंट इज x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, 14, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल 3x प्लस 5y, 3x plus 5y less than or equal to 15, second constant. And the third is first quadrant, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. This is what? First quadrant. Okay, so again we have to find points on the x axis and y axis to draw these lines. So y 0 x 8 8 0 मिलेगा. Okay, so these are the 2 points on this line. So यहाँ पे भी फिर से y 0 x कितना मिलेगा 5, तो x 0 y कितना मिलेगा 3. तो ये 4 पॉइंट्स हमें दिखाने के हैं on this coordinate axis. Okay, so this is x axis, this is y axis. So x plus y 8 0 0 8, suppose this is plus 8, तो इतना ही डिस्टेंस ऊपर जाने का है. सो दिस इज 8 ऑन y एक्सिस एंड दिस इज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 8. ओके, एंड इसका फिजिबल रीजन हम फाइंड आउट करेंगे. सो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 फॉर ओरिजिन आइदर H1 और H2. कौन सा रीजन होगा ये हमें देखने का है. सो ओरिजिन तो इसमें सेटिस्फाई x इक्वल टू ओरिजिन 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन 8 नॉट 2. तो इसका फिजिबल रीजन होगा नॉन ओरिजिन साइड, उस साइड में होगा. एंड नाउ सी दिस 5 0 5 0 इज हियर, दिस इज 5 0 3 0 3, यहाँ पे होगा 0 3. So we will draw the line passing through these 2 points, and this line has equation 3x plus 5y equal to 15. तो इसका फिजिबल रीजन देखेंगे. x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 0 इज लेस देन 15, 0 इज लेस देन 15 इज ट्रू. तो इसका फिजिबल इस साइड में है. अब देखिए कॉमन रीजन, हियर इज द कॉमन रीजन एट दिस पोर्शन, यहाँ पे हैं राइट. और इस इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन इस साइड में है. तो यहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं बन रहा है. देयर इज़ नो कॉमन रीजन. थर्ड केस ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी, हियर फिजिबल रीजन इज एम्प्टी. यहाँ पे फिजिबल रीजन एम्प्टी है, यहाँ पे फिजिबल रीजन एम्प्टी है. सो देयरफॉर दिस कंस्टेंट्स और दिस एलपीपी हैज़ नो सोल्यूशन. इसको कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आर यू गेटिंग? फिजिबल रीजन एम्प्टी है, कोई कॉमन रीजन हमें नहीं मिल रहा है. सो दिस वाज 14. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. वेरी नाइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. दैट क्वेश्चन इज वेरी बेस्ट. 15 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है. कंसेप्ट है कॉन्वेक्स सेट की. कॉन्वेक्स सेट के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है. सो यू रीड द क्वेश्चन नंबर 15. आप भी ट्राई कर सकते हैं. फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 15. ओके, सो इन दिस वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्वेक्स सेट. इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट है. सो आई विल राइट द ऑप्शन. कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? और सेट ऑफ पॉइंट्स, अगर कोई सेट ऑफ पॉइंट्स है उसमें से
कोई दो पॉइंट में सिलेक्ट करता हूँ ए और बी, एंड इफ़ आई ज्वाइन द सेगमेंट ए बी, if that segment AB lies wholly in the set yes, then the set yes is called as convex set, and feasible region of every LPP is a convex set. So convex set की मैंने डेफिनेशन फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ. अगर ये सेट यस है, दिस इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स यस, इसमें से कोई भी दो पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ए और बी, और मैं उस सेगमेंट को ज्वाइन करता हूँ, तो दैट सेगमेंट उसी सेट में अगर है तो उस सेट को हम कहते हैं कॉन्वेक्स सेट, और हर एलपीपी का फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स सेट होता है. सो कॉन्वेक्स सेट मे बी बाउंडेड, मे बी अनबाउंडेड. अब हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा है एक्स वाई ऐसे पॉइंट्स का सेट है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9. राइट, सभी ऑप्शंस मैं लिख लेता हूँ, फिर एक एक ऑप्शन मैं आपको समझाऊंगा. सेकंड इज एक्स कॉमा वाई सच दैट 16 एंड 36, सो 16 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 36. दिस इज सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई सच दैट 2x स्क्वायर प्लस 3y square 2x square plus 3y square is less than or equal to 6, and my last option is x comma y such that x square minus y square is less than or equal to what? 16. तो इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9. ये हमें फाइंड आउट करने का है वेदर इट इज़ अ कॉन्वेक्स सेट और नॉट. सो हियर यू आर सीइंग दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये एक सर्कल का इक्वेशन है, उसकी रेडियस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में स्टैंडर्ड सर्कल. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन जब दिख रहा है, सो इट मीन्स दिस सेट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट द पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल. इसका फिजिबल रीजन है, कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड के पॉइंट्स दिखा रहा है. अब इसी रीजन में मुझे दो पॉइंट सेलेक्ट करने के हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. अगर मैं इन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो दिस सेगमेंट अगर बाहर ही आती तो एक कॉन्वेक्स सेट होता. लेकिन सेगमेंट का पोर्शन देखिए, यहाँ पे सेगमेंट ए बी सेगमेंट बाहर के रीजन में नहीं आ रही, ये पोर्शन यहाँ पे आ रहा है. सो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हो सकता. ए एंड बी लाइज होली इन द सेट यस, सो दिस इज नॉट द कॉन्वेक्स सेट. अब सेकंड देखिए, सेकंड में मुझे ये इक्वेशन दिया है. अगेन दीज आर द टू सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. दीज आर द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 36, यानी इसका रेडियस 6 होगा, इसका रेडियस कितना होगा? 4. सो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. लेस देन 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 16, इट मीन्स दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड हियर. ये दोनों सर्कल का जो डिफरेंस का पोर्शन है, ये पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है. अब कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? अगेन वी विल टेक पॉइंट ए ऑन दिस एंड बी पॉइंट अगर यहाँ पे लेंगे, ये ज्वाइन करते हैं तो बाहर के सेट में नहीं आ रहा है, अंदर के सेट में भी पॉइंट आ रहा है. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्वेक्स सेट. अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 6. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. अगर मैं इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड करता हूँ तो x स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन मिलेगा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. ये एक इलिप्स है और हमें लेस देन और इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, तो इट रिप्रेजेंट द रीजन इनसाइड द इलिप्स. ये रीजन इनसाइड का है. अब यहाँ पे मैं पॉइंट ए लेता हूँ, पॉइंट बी लेता हूँ और पॉइंट ए बी सेगमेंट ज्वाइन करता हूँ, तो ए बी सेगमेंट उसी सेट में है. सो देयरफॉर दिस इज़ द कॉन्वेक्स सेट. तो ये कॉन्वेक्स सेट है क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट उसी सेट में है. सो दिस इज़ द कॉन्वेक्स सेट. अब ये कॉन्वेक्स सेट क्यों नहीं है, लास्ट वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ. सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ये एक हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. सो आपको मालूम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस फॉर्म का होता है.
सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 लेस देन इक्वल टू 1। सो अगर मैं इसमें 0 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। तो ऐसे मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी आपको तैयारी करने की है। सो एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0 इज़ लेस देन 16। सो 0 से ये इक्विनिक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट द दिस पोर्शन जिसमें ओरिजिन है, ये पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट ए लिया, अब समझो यहाँ पे मैंने पॉइंट बी लिया और ए बी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ए बी का पोर्शन, ये पोर्शन बाहर आ रहा है, इस रीजन के बाहर आ रहा है, सी दिस पोर्शन, तो इसलिए ए बी कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। वेरी नाइस क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. See the question number 16 of LPP for MHTCET. See the question number 16 of LPP for MHTCET. So this is the theoretical question, definition पे depend है। In the question number 16 हमें पूछा है which of the following is correct, which of the following is correct, which of the following is correct। ऑप्शन ए दिया है every LPP has optimal solution, every LPP has optimal, हर LPP को ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, नहीं होता है। अब भी देखा है हमने कि कोई कोई LPP को सोल्यूशन ही नहीं होता है। अगर फिजिबल रीजन एम्प्टी हो तो सोल्यूशन नहीं होता है। अगर कोई LPP को दो दो सोल्यूशन भी होते हैं, अगर सेम वैल्यू मिलती है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस, तो दो दो सोल्यूशन भी होते हैं। सो दिस ऑप्शन एवरी LPP हैज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कोई LPP बगैर सोल्यूशन के भी हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन LPP हैज़ एन यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता है, मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमम भी मिल सकता है। सो दैट इज़ नॉट यूनिक, दैट इज़ नॉट यूनिक। ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। सो दैट इज़ नॉट यूनिक, यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखिए, इफ LPP हैज़ टू ऑप्टिमल सोल्यूशन देन इट हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो दिस इज़ द करेक्ट। ये ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ फिजिबल रीजन, फर्स्ट केस ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ LPP, अगर ये मेरा फिजिबल रीजन है और दीज आर द वर्टाइसेस, इसके कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस पे मुझे Z की वैल्यू सेम मिल रही है, Z एट C सपोज 50 मिल गया और Z एट B भी 50 मिल गया, तो इसको इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, क्योंकि B और C कौन से वर्टाइसेस है? कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस। सो वी विल गेट द आंसर Z इक्वल टू 50 एट एवरी सेगमेंट ऑफ दिस सेगमेंट BC के हर पॉइंट पे हमें सेम वैल्यू मिलेगी। इन दिस केस वी से दैट द LPP हैज़ इन्फाइनाइट सोल्यूशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर C। लास्ट वाला, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ LPP मे नॉट बी कॉन्वेक्स। सो पहले ही मैंने बोला था कि LPP का सोल्यूशन सेट हमेशा कॉन्वेक्स होता है। सो द लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द 17, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन को आप देखिए, रीड द क्वेश्चन नंबर 17 केयरफुली। सो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ कंस्टेंट्स आर, तो यहाँ पे कुछ वर्टाइसेस दिए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स यानी वर्टाइसेस ऑफ द फिजिबल रीजन दिए हैं, एंड दिस वर्टाइसेस आर 0 10 5 5 15 15 and 0 20, 15 15 and 0 20, these are the vertices of fiजिबल region. Again read the next, let Z equal to Px plus Qy be the objective function where PQ greater than 0, condition on P on Q so that the maximum of Z occurs at both the points 15 15 and 0 20. 15 15 ये पॉइंट और 0 20 पे सेम वैल्यू मिल रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, Z इज सेम एट 15 15 एंड 0 20। तो ऐसा कब होता है? देन इफ़ द कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस पे अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है, तो इन दिस केस वी से दैट द LPP हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो Z जो है मेरा क्या है? Px प्लस Qy,
तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए बी, सो जेड एट ए इज इक्वल टू जेड एट बी, जेड एट ए इक्वल टू जेड एट बी। कंडीशन ऑन पी ऑन क्यू सो दैट द मैक्सिमम ऑफ जेड ऑकर्स एट बोथ द पॉइंट्स। इस यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो दोनों मैक्सिमम है यानी दोनों सेम ही होनी चाहिए। अगर दो तभी इन्फानाइट सॉल्यूशन भी मिलते हैं। सो जेड एट ए मस्ट बी इक्वल टू जेड एट बी, सो जेड एट ए इज इक्वल टू जेड एट बी। तो ए जेड एट ए क्या होगा, पुट एक्स इक्वल टू 15 वाई इक्वल टू 15, सो इट इज़ 15 पी प्लस 15 क्यू। जेड एट बी, सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20, तो ये 20 क्यू होगा। सो ये होगा 15p इज इक्वल टू 20 क्यू माइनस 15 क्यू इज 5 क्यू। और इस तरह से मुझे कंडीशन मिली है 3p इक्वल टू क्यू। 3p इक्वल टू क्यू इसका आंसर है 3p इक्वल टू क्यू, यानी q इक्वल टू 3p, q इक्वल टू 3p। सो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो दिस वाज 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ LPP फॉर MSTCET। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी एक थियोरेटिकल ही क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। इफ़ द कंस्टेंट्स ऑफ LPP आर चेंज देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर किसी LPP के कंस्टेंट्स हम चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है px प्लस qy, सब्जेक्ट टू कुछ कंस्टेंट्स यहाँ पे दिए हैं। सपोज दीज आर सम कंस्टेंट्स a1x प्लस b1y, ऐसा कुछ तो भी हमारा LPP है। ओके, अब इफ़ द कंस्टेंट्स ऑफ द LPP, अगर कंस्टेंट चेंज किए, हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये मेरा फिजिबल रीजन है, लेकिन मैंने कंस्टेंट ही चेंज कर दिया। कंस्टेंट ही चेंज कर दिया। तो कंस्टेंट चेंज किया तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड। अब कंस्टेंट चेंज हो गई तो फिजिबल रीजन चेंज होगा, फिजिबल रीजन भी चेंज होगा, लाइंस के ग्राफ चेंज हो गए, फिजिबल रीजन चेंज होगा। इफ़ द कंस्टेंट्स आर चेंज्ड, दिस फिजिबल रीजन विल बी चेंज्ड, फिजिबल रीजन भी चेंज होगा। फिजिबल रीजन चेंज हो गए तो वर्टाइसेस भी चेंज हो गए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वर्टाइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन हैज़ टू बी चेंज्ड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज गिवन है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, सो दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। थर्ड, हैज़ टू बी रिवैल्यूएटेड, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमको फिर से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्टेंट चेंज हुई है तो फिजिबल रीजन चेंज होगा, फिजिबल रीजन चेंज होगा तो वर्टाइसेस चेंज होगी, तो वर्टाइसेस चेंज होगी तो इसको फिर से हमें री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसमें नए x और नए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर से हमें नए z की वैल्यू मिल सकती है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। गेट्स डबल्ड, वो भी रॉन्ग है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ LPP। तो इस तरह के कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो द नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ LPP टू मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन ऑफ LPP टू मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y सच दैट x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले ही फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, दिस इज रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो टेंशन। बाद में इनइक्वालिटी दी है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस LPP मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y सच दैट दिस, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है वो हमें फाइंड आउट करने का है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं।
सो यहाँ पे x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, here x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे इस लाइन के, y 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 1, अब x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू 1/2, इस लाइन के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 एंड इस लाइन के पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे x इक्वल टू 0, y कितना मिलेगा 5। सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ, इन लाइंस को हम प्लॉट करेंगे x एक्सिस y एक्सिस। सो 10 0 यानी काफ़ी लंबा जाने का है 10 0, ओके। सो इट इज़ 10 0 0 5 ओके, दिस इज़ 5। सो ये सेकंड वाली लाइन मैंने पहले ड्रॉ की है, दिस इज़ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10, ओके। अब लेस देन और इक्वल टू 10 x, ये ओरिजिन के लिए चेक करेंगे, 0 प्लस 0 0 इज़ लेस देन 10 इज ट्रू, तो इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड होगा, H1 रीजन होगा। अब 1, 0 इज हियर, दिस इज़ 1 0 1/2, तो ये 1 0 0 1/2 थोड़ा यहाँ पे आएगा, सो दिस इज़ 1/2, तो ये लाइन होगी, ओके। सो दोनों लाइन पैरेलल ही होगी, x प्लस 2y, दोनों को स्लोप्स आर सेम, तो इसका फिजिबल रीजन कहाँ पे होगा, 0 प्लस 0, ओरिजिन के लिए चेक करेंगे, 0 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ फॉल्स, तो इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड नहीं होगा, नॉन ओरिजिन साइड होगा, तो इसका फिजिबल रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस इज़ द फिजिबल रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अब इसके वर्टेक्सेस देखिए, दिस वर्टेक्स हैज़ कोऑर्डिनेट्स 10, 0, दिस वर्टेक्स हैज़ कोऑर्डिनेट्स 1, 0, दिस वर्टेक्स हैज़ कोऑर्डिनेट्स 0, 1/2 एंड दिस वर्टेक्स इज 0, 5। सो ये चारों वर्टाइसेस फिजिबल रीजन के हैं। अब हमें मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है वो फाइंड आउट करने का है। फॉर दैट वी हैव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 2x प्लस 3y, ओके। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू 10 तो यहाँ पे 20 मिलेगा, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 3 इंटू 1/2 3/2 यानी 1.5 एंड x इक्वल टू 0, 5 इंटू 3 कितना मिलेगा 15। सो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, विच इज़ द मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस z। सो दिस मिनिमम वैल्यू इज एट द पॉइंट 0, 1/2, so minimum is at x equal to 0, y equal to 1/2. So this is the correct answer to this question number 19 of LPP, which is in the first option A। तो पहला ऑप्शन A करेक्ट है, मिनिमम वैल्यू इज एट, मिनिमम है 1.5, ये देखिए मिनिमम 1.5 कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 0, 1/2। सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सी द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ LPP, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का एंड दिस इज अगेन अ वेरी बेस्ट क्वेश्चन नंबर 20। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन MST CET 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय गलती की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, व्हाई, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर नहीं थी। अगेन आई विल रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ इन्फानाइट सॉल्यूशन। इन्फानाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, अगर कोई, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस कंस्टेंट्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन देखिए, एट ओनली 1 पॉइंट, at only 2 points, at every point of segment joining the 2 points, at every point on the line joining the 2 points। अब फर्स्ट अगर इस LPP को हम सॉल्व करते हैं तो पहले हमें कॉमन रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वर्टाइसेस, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखता हूँ, सो x1 प्लस x2, यानी मैं इसे x2 को y लिख लेता हूँ, x1 यानी x, x2 यानी y, ये भी पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। सो z इक्वल टू x प्लस वाई, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। अब कंस्टेंट देखिए,
my first constant is x1 plus x2 is less than or equal to 10. So this constant is x plus y less than or equal to 10. राइट अब इन्फानाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? इन्फानाइट सॉल्यूशन का एलपीपी हम देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एलपीपी को इन्फानाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप देखिए, लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका स्लोप कितना है? -1 x प्लस वाई, स्लोप कितना है? -1। इस कंस्टेंट का स्लोप देखिए, इस कंस्टेंट का स्लोप भी कितना है? -1। सो द लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ द कंस्टेंट। इस कंस्टेंट को ये लाइन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन अगर पैरेलल है, स्लोप सेम है, सो हियर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल होते हैं तो हमें इन्फानाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, हमें इन्फानाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। वी गॉट इन्फानाइट सॉल्यूशन एट एनी टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस। सपोज दिस वर्टेक्स इज ए, दिस वर्टेक्स इज बी। तो इन्फानाइट सॉल्यूशन कहाँ पे होते हैं? पूरे लाइन पे नहीं होते, एट एवरी पॉइंट ऑन सेगमेंट ए बी। एट एवरी पॉइंट ऑन सेगमेंट ए बी, हर ए बी सेगमेंट के हर पॉइंट पे हमें सेम वैल्यू मिलेगी। जो ए पे मिली है और जो बी पे मिली है, वही वैल्यू हमें सेगमेंट ए बी के हर पॉइंट पे मिलेगी। लास्ट ऑप्शन में लाइन दिया है, तो लाइन तो फिजिबल रीजन में होती ही नहीं है, सेगमेंट फिजिबल रीजन में होती है, लाइन फिजिबल रीजन में नहीं है। लाइन इज नॉट इन द फिजिबल रीजन। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ जेड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स पे हर सेगमेंट पे होगी। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होनी जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एलपीपी ऑफ द MSTCET। तो इन सभी MCQs को आप अच्छी तरह से देखिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। यू विल गेट श्योरली 2 मार्क्स। एक ही क्वेश्चन MSTCET में इसका पूछा जाता है, तो बाय चांस कभी 2 पूछे गए तो आपको 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन वे वेरी हो जाते हैं, कभी कोई टॉपिक है तो उसके 4 पूछते हैं, तो कभी 3 भी पूछते हैं, ऐसा भी होता है। तो कभी बाय चांस 2 क्वेश्चन मिल गए तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ द सिलेबस मैथमेटिक्स 1 के मैंने पूरा MSTCET आपको सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।